Electricity. In our 10th class, electricity chapter is there, and which is very useful in our common life as well as very important in advanced classes. Very important. If we don't know electricity properly, we cannot proceed nicely. And moreover, I have seen so many students last several years. Students don't understand exactly what does it mean carry electricity, how it operates, and functions everybody knows, uses everybody knows. In day-to-day life, we always use electricity. Everywhere we use electricity in our all gadgets, fan, television, refrigerator, even mobiles. So we are using electricity everywhere, but exactly if you don't know the fundamentals of electricity, we cannot study the physics even. So let us start with our electricity, how it works. So in fact, we should know the charges first of all. What is charge? You might have studied in 8th class positive charge, negative charge. You might be knowing. Same way here also, some positive charges are there, negative charges are there, and same charges attract each other. And opposite charges attract each other, and same charges repel each other. You must be knowing, I think. So how we are going to study? So before we switch on our electricity, we should know the meaning of charge. In fact, so electricity itself is nothing but this is a science, branch of science or branch of physics which deals with charges. What is charge in fact? It is no, it is not like electron, proton or something else. It is a property. It is a property possessed by our cation or anion. If it is a cation, suppose sodium plus, if we say sodium plus, it is cation, so positive charge. And suppose chlorine, anion, so it is Cl minus anion, right? I think you understand what is positive charge and negative charge. So here we are going to study our charges, and the electricity deals with the charge, means electricity deals with motion of charges. Some property, something, our charges are getting uh, transferred from one place to another, that is called electricity. If our charges are in motion, it means elect uh, electrons are moving, and once electrons are moving, so electricity is flowing. So how this electricity is flowing, first of all we should know. And you should know, suppose electrons are there and they are carrying negative charges. So motion of electron, and first of all you should know how these electrons are moving. So conductors possess electron, and at the same time conductor size of atom of metal are comparatively bigger sizes, and bigger sizes are having more number of electrons, and electrons which are away from the nucleus, the electrons which are away from the nucleus, they may detach from the atom, or we can say they become free electron. They leave the place, they leave the atom. Attraction of proton, proton is there in an atom. So what does it mean? It means protons are attracted by electrons and electrons are attracted by the proton. That's why they are having bond, they are bonded together and constitute an atom. But if any electron is moving away from the atom, that becomes free electrons. That's why all the conductors, they constitute electricity, or we can say they allow the electricity to flow into them. It is because of flow of charges or flow of electrons, right? So flow of charges, who allows who allows this flow of charges?
ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, किस तरह से फ्लो होगा, फ्री ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाउ दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, which energy which make them to flow, or indirectly we can say electricity itself is a type of energy, right? So in our electricity, in this chapter, in this electricity, uh, first of all I'll tell you by with the help of diagram. I'll show you this schematic diagram of electric circuit. What is that electric circuit? So in an electric circuit, if you are doing any experiment at home or in school, first of all we should have battery. Do you know what does it mean, battery? Battery means number of cells putting together in particular order. Particular order, I think you understood. In torch also, if you put cells, they should be in particular order. You know particular order? I'll show you one pencil cell, then you can understand, I think. Suppose this is pencil cell, one nipple is here, this is positive part and this is negative part. Suppose one pencil cell is there, it is having 1.5 volt. You might have seen. If you don't, you can see in your wall clock, pencil cell is there, you remove it and see it is having 1.5 volt. After some time I'll tell you what is this 1.5 volt, what does it mean, volt, what does it mean, volt and voltage, right? So first of all we should know what is the diagram, circuit diagram, circuit डायग्राम क्या होता है, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो मैं ऑर्डर बता रहा था आपको, why we should put in order. So next cell it should follow in this fashion. This button will be our positive part of one cell should attach with negative part of another cell, right? So this is in particular order. So it will provide how much voltage, 1.5 volt in one cell and second one is also having 1.5 volt. So altogether this became a battery, and it is having 3 volt, right? 1.5 plus 1.5, it becomes 3 volts. I think you understood what does it mean of cell, what does it mean cell and battery. So number of cells makes a battery, two or more. Okay, so let us see in a, so this is the cell, so sorry, this is the battery. How to draw it? I am going to draw one battery. So one is positive, this is always the bigger portion is always called positive side. Positive side of cell is called positive side and this is negative side, right? This is one cell. So I am going to draw another cell. This is positive and this is negative, right? This is positive and this is negative. So it is having two cells. I'll draw one more cell, right? Now it became complete battery. Okay. After this, I'll put one resistance. Suppose one bulb is there. This is a symbol of bulb, right? And you should know the meaning of resistance. I'll tell you what is resistance. And this is ammeter, A. Symbol is A, ammeter. Ammeter का role क्या है? What is the role of ammeter in a circuit? Ammeter measures amount of current flowing in the circuit. Amount of current flowing in electric circuit. Okay. So
The unit of current electricity is ampere, right? Capital A, always capital A, don't write small a. Okay, it will be mistake. Never write small a, it is always in ampere. Okay, and sometimes very small amount of electricity is flowing, then sometime it will be called milliampere. Small m and capital A, milliampere. And sometime very small amount of that is called microampere. I'll tell you later, right? I think you understood this ammeter and current, unit of current and symbol of current. So this is your ammeter, and ammeter is always connected in series. See it. One portion, suppose this positive part is going like this. So this is negative, this is positive, this is negative, this is positive. Same order current will be flowing, right? And it will come to the negative part. Okay. So ammeter is always connected in series. One of the most important point, ammeter is always connected in series in a electric circuit. Okay, next is how it flows. So I should explain you what is resistance. What do you mean by resistance? First of all, something stops something. So something means that resistance, suppose it is a bulb bulb stops what? Flow of current. Flow of current. Stops or resist, not, I should not say stops, I should say resist. तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, स्लो कर देता है, ठीक है ना? कितना स्लो करेगा? जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा. इफ रेसिस्टेंस इज मोर, फ्लो विल बी लेस. ध्यान रखना. ओके, सो ऑल आवर गैजेट्स आर they are always resistance only, ठीक ना? They create resistance. I'll tell you later. So many things I have to teach you. So here you have seen this is the flow of current I. याद रखना I. Symbol of current is I. Sorry. Symbol of current is I, capital I. Don't write small I. So this is the flow, direction of flow of the current like this. So पॉजिटिव पोर्शन की साइड से करंट फ्लो होगा, ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना. और ऐसे जा रहा है ये, और इसके अंदर से फ्लो होगा, रेसिस्ट होगा, और हमारा बल्ब ग्लो करेगा. आफ्टर दैट करंट पास होता हुआ यहां से अमीटर के थ्रू जाएगा, और अमीटर के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे? हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, हाउ मच करंट इज flowing. Now how much current will flow, it totally depends upon battery and resistance. याद रखना, how much current will flow, how much is the resistance and how much is the battery. right? क्लियर है ना? आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे बैटरी रोल अदा करेगी, कैसे वोल्टेज होगा, कैसे होगा, सब चीजें क्लियर होंगी आपको, धीरे धीरे होंगी. ठीक है, बस मेरी बातें ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो, और वीडियो को हो सके तो 2-3 बार चेक करो क्या क्या इसमें मैटर है, कैसे कैसे मैंने बताया. तो चलो, ये बात तो मैंने बता दी. ये डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से जाएगा? पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी. ये इसको क्या बोलेंगे? ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? सो दिस इज द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी. पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी. और ये क्या है? ये है नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी, राइट? सो पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी साइड से ही हमारा करंट फ्लो होगा. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. नाउ who is making it to flow? First of all, they are electrons.
जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला, तब तक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं मालूम था कुछ भी, लेकिन फिर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है ना। तो फिर ये कैसे पता चला, क्या हुआ, ये हमें कैसे पता चला? तो ध्यान रखना, अभी फिर से मैं बताने जा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस, ई माइनस, ठीक है, ई माइनस, ई माइनस क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनो और अच्छे से बता देता हूं यहां पे मैं आपको। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम है ये, और इस सर्किट डायग्राम में आई करंट इस तरफ से जा रहा था, और फिर मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऑलवेज अपोजिट। कौन कौन? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ध्यान रखोगे आप, याद रखना ये चीज। एक फोटो है ना, वो दिखा दो, बंद मत करना, बंद मत। ये देख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जरा देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव पोल, दिस इज द पॉजिटिव पोल, तो इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है? करंट का फ्लो इधर है, करंट का फ्लो इधर से हो रहा है। लेकिन ये देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो इधर ये दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, बट ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, और ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखो इस साइड में जा रहा है कि नहीं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होगा, और यहाँ पे अमीटर लगेगा। एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, पहले आप सीख लो करंट कैसे फ्लो होता है। करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ व्हाट एंड इन विच डायरेक्शन, एंड इट इज मेजर्ड बाय अमीटर इन यूनिट एम्पियर, राइट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलो थोड़ा बुक को भी देखते हैं, थोड़ा बुक को देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, आपको क्लैरिटी आएगी आपको। सो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, and see here also a continuous, so what is circuit diagram? A continuous and closed path. तो चलो मैं आपको closed path भी बता दूं, what does it mean closed path and open path? Closed path and open path. So this is called key, दिखाई दे रहा है, this is called key. If you are keeping key like this, it is open. Open means no flow of electricity, no flow of electricity, right, no flow, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। अगर आपने इसको ऐसा बना दिया, और अगर आपने इसको ऐसा बनाया, बीच में ये की लगा दिया आपने, मतलब ये है कि आपने प्लग ऑन कर दिया। इसको अभी की भाषा में बोलते हैं प्लग ऑन, लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई हो रही है, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। Getting or not? Here also closed circuit is there. When closed circuit will be there, then only reading will be there in the ammeter. अमीटर रीडिंग तभी करेगा जब ये की इसके अंदर रहेगा, तभी तो करंट फ्लो होगा ना। अगर आपने की नहीं लगाया तो फ्लो कैसे होगा करंट का? और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो अमीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी। ओके, आई थिंक क्लोज्ड पाथ एंड ओपन पाथ यू अंडरस्टूड। ओके, तो चलो आगे क्या क्या बोलता है, चलो देखते हैं। सो क्या बोला ये? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, राइट। सो आगे क्या बोलता है ना, इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर,
आपको मालूम है कहीं भी वायर ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो करंट पास होगा क्या? नो। सो और स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, तो बात तो एक ही है ना? स्विच टर्न ऑफ कर दो या कोई वायर ब्रेक कर दो तो करंट विल स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है ना? मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं, स्टार्ट रीडिंग द बुक। मैं आपको इसलिए बुक के अंदर ले जाके बता रहा हूं कि देखो किस तरीके से कहां क्या लिखा हुआ। सो हाउ डज वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कैसे बताएंगे? सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ध्यान से सुनना, ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती है, दैट्स वाई दे डोंट प्रेफर टू रीड द बुक। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डज इट मीन। ओके, चलो मैं दोबारा से बता देता हूं इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। सो अमाउंट ऑफ चार्ज आई टोल्ड यू, तो कैरियर ऑफ चार्ज आर इलेक्ट्रॉन, कैरियर ऑफ चार्ज आर इलेक्ट्रॉन। सो कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, if free electrons are more, okay, flowing through a particular area in unit time। unit time means आप कितनी देर तक उसको चला के रखते हो। सपोज आपके पास इमर्शन रॉड है, यू नो इमर्शन रॉड, जिसे पानी गर्म करते हैं। सो इमर्शन रॉड को आप अपनी बकेट के अंदर डिप करके रखते हो पानी गर्म करने के लिए। सपोज 1000 वाट यूनिट का आपके पास इमर्शन रॉड है, ऑन कर दिया आपने। आप इसको 2 मिनट तक के लिए चला के रखो, 5 मिनट चला के रखो, 10 मिनट चला के रखो, विल यू फाइंड सम डिफरेंस? यस, टेम्परेचर। सो temperature of this water will vary if you are putting for 2 minutes less hot होगा पानी, 5 मिनट में और ज्यादा हो जाएगा hot, and after 10 minutes it will start boiling sometime, right? So that amount of charge means what? तो amount of charge आपको समझ में आ गया, कितना ज्यादा चार्ज होना चाहिए और कितने यूनिट टाइम, कितनी देर तक आप उसको चलाते हो। आई होप यूनिट टाइम की बात समझ में आ गई होगी, कितने मिनट तक और कितने सेकेंड, वट एवर इट इज। सो वट इज दिस पर्टिकुलर एरिया, वट डज इट मीन? चलो बताइए, सोचो थोड़ी देर के लिए, व्हाट डज इट मीन एरिया? एरिया का मतलब क्या है? चलो एरिया के बारे में बता देता हूं आपको मैं। सपोज ये आपका केबल है, ये आपका केबल है, केबल आपने बहुत पतला लिया है, एक आपने और भी पतला ले लो वायर, इस वायर के अंदर कंडक्टर बहुत कम है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एक जगह तो पतला वायर है, देखो एक से मोटा वायर है, और मोटा वायर बना दिया, और मोटा वायर है। तो सपोज ये इधर से गोल है, राउंडल है ना, गोल रहता है ना। तो ये जो एरिया है इसकी बात करो, चलो इसको मैं फ्रंट से उससे दिखाता हूँ। ये जो एरिया रहेगा, इस एरिया के बारे में बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलेगा, और अभी हम लोग इसको बार बार यूज करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट? इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ध्यान रखना, आपका वायर कितना थिक है, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी थिकर, मोर, राइट? आई होप दिस पॉइंट यू अंडरस्टूड। सो इन अदर वर्ड्स इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट कभी भी बोलते हैं ना, तो रेट टाइम के लिए यूज होता है। आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के लिए पढ़ा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ और क्या क्या है, डिस्टेंस, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे दो, इन सर्किट, याद रखना सर्किट आपको मैं समझा चुका हूं, देन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर। तो बी क्लियर, ऑलवेज यूज मेटेलिक वायर। व्हाई वी आर यूजिंग मेटेलिक वायर? Why we use metallic? Because metallic wires are good conductor of electricity। ध्यान रखना, जो बातें मैं बता रहा हूं प्लीज आपको याद रखना है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो बी केयरफुल। ओके, सो इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर, तो व्हाई वी आर यूजिंग मेटेलिक वायर? बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैं आपको बताया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज को फ्लो करवाएंगे। फ्लो ऑफ चार्ज कौन करवाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, but in opposite direction. However, electrons were not known at the time when phenomena of electricity was first observed. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जब इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई थी उस समय तक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई नहीं जानता था, फैराडे भी नहीं जानता था। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आगे देखो। यहां के बाद आपको याद रखना है, जो मैंने कलर लगा दिया, आप अपनी बुक में भी कलर लगा देना। इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोचोगे यार इलेक्ट्रिक करंट का पॉजिटिव क्यों बोल रहा है? मत बोलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा क्यों बोलते हैं। आप एक काम करो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो सपोज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं एंड दे आर नेगेटिव चार्ज, दे आर नेगेटिव चार्ज। तो और आते कहां है ये? दे कम्स टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। बी केयरफुल, मैं जो समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स इधर की डायरेक्शन में आएंगे बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। मैंने बताया ना, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। Getting? So this is electron and having negative charge, so it will be attracted by positive pole of the battery, right? So, but I told from positive pole of the battery, current will flow in this direction. So it is opposite direction of the electron. So I is nothing but current, and current is flowing opposite to the electrons. This is current and this is electron. I think you are getting. If not, मुझे mention करो. So electric current was considered to be flow of positive. That's why it is called positive. Because once we say that electrons are having negative charge, ध्यान देना please. When electrons are having negative charge, so current is flowing opposite to it. That's why it is called positive charge. ठीक है? And the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. इसीलिए flow positive charge, तो positive charge किसको माना? Electric current को. So direction of electric current will be opposite to the direction of the electrons or positive charge. Conventionally, अब यहां पे ध्यान देना, ये आपको याद रखना है, an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron. याद रखो आप। रुको मैं कलर बदल देता हूं, फिर आपकी समझ में आएगा क्या बोल रहा है ये। in an electric circuit the direction of current, तो direction of current क्या होती है? taken as opposite, किसके अपोजिट? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में होगा उससे अपोजिट होगा किसका? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, किसके? इलेक्ट्रॉन के। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। कहां? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। Getting or not? So please read this page twice, thrice and try to understand the basic phenomenon of electricity. If you don't, it will be very difficult. चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। द नेट चार्ज Q। अब ध्यान देना, चार्ज को कैसे शो करते हैं? Q, कैपिटल Q और कभी कभी स्मॉल q। ठीक है। फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। अब मैंने आपको क्रॉस सेक्शन बताया था ना, आपका वायर का जो थिकनेस है ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है,
तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर इज नथिंग बट सेम मेटेलिक वायर। यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है ये? मेटेलिक वायर। कंडक्टर इन टाइम टी, अगर वो टाइम टी लेता है, ध्यान दे सुनो फिर से, एक नेट चार्ज है क्यू। कितना चार्ज है? नेट चार्ज क्यू है। फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब मेटेलिक वायर के थ्रू आप उसको पास करवा रहे हो इन टाइम टी, टी टाइम में, देन करंट आई, दिस इज करंट आई, एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I is equal to Q by T is your formula. I is equal to Q by T. तो current is equal to how much current it is consuming. I is equal to Q by T means how much charges is being carried out by in time, in unit time, in unit time. Getting? So this is one formula. Sometime question will be asked through this. So get ready and remember it. One question is also here. I'll show you. One example is there. I think it is better to understand right now. Let us see. चलो देखते हैं क्या बोलता है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ध्यान देना, करंट मतलब आई कितना है? आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, हाफ एम्पियर, राइट, इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो फिलामेंट किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो ये क्या है आपका? यही तो रेसिस्टेंस है, यही तो रेसिस्टेंस है हमारा। फॉर 10 मिनट्स, याद रखना, टाइम इज 10 मिनट्स, इट मीन्स यू हैव टू मेक इट इन सेकेंड्स। तो सेकेंड के लिए क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 600 सेकेंड्स, राइट। यहां देखो 600 सेकेंड है ये। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कितना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा वो बताना है। तो अभी अभी आपने क्या फॉर्मूला देखा था? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आपको पता क्या करना है? चार्ज इज क्यू, ये पता करना है। तो आप क्यू को यहीं रहने दो, टी को लेफ्ट साइड लाओ, ये क्या हो जाएगा? आई टी, आई इंटू टी। आई कितना है? करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। टाइम टी कितना है? 600। 600 को आधा से मल्टीप्लाई करो क्या? तो 300 हो जाएगा। और चार्ज इज ऑलवेज मेजर्ड बाय कूलॉम, कूलॉम कैपिटल सी, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम, याद रखना। चलो मैं यहां बता देता हूं आपको, देखो यहां पे लिखा भी होगा। यस, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम, याद रहेगा। विच इज, अब यहां पे ये वाली 2-3 लाइनें हैं, ये बच्चों को समझ में नहीं आती, अभी आ जाएगी, अभी के अभी आएगी, डोंट वरी। तो देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता ये, मैं अभी आपको समझा देता हूं, लेट अस सी। तो अभी आपने देखा क्या बोल रहा है ये, एसआई यूनिट क्या है इसका? कूलॉम। कूलॉम की स्पेलिंग देख लो, COULOMB, कूलॉम, राइट। विच इज इक्विवेलेंट टू the charge contained is nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। ये बात कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती। क्या बोल रहा है? विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको कैरी करेंगे। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोसेस ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलॉम। कुछ बच्चों को ये दोनों बातें समझ में ही नहीं आती। मैं समझाता हूं आपको, दोबारा से समझाऊंगा, 2-3 बार बताऊंगा तो आपकी समझ में तुरंत आएगा। और ये हमेशा याद रखना, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी इन नियर फ्यूचर इन 12th क्लास ऑल्सो, यू हैव टू गो IIT एंड NITs। अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बोलना चाहता है ये। क्या बोल रहा है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। अगर मैं बोलता हूं 1 कूलॉम, ध्यान से सुनो, अब समझ में आएगा आपको। अगर मैं बोलता हूं 1 कूलॉम चार्ज इज देयर,
तो 1 कूलम चार्ज के लिए ये बोलता है कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितना चार्ज होगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है ना, तो माइनस का जो चार्ज है कितना, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब चार्ज, जितने चार्ज कंटेन करेंगे एक साथ, तब हम उसको 1 कूलम बोलेंगे। विल से इट 1 कूलम। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो इसका मतलब 1 कूलम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंटेन करेगा, 6 इंटू 10⁻18 है ना। चलो देखते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन हैं किसके लिए, 1 कूलम के लिए, राइट। 1 कूलम के लिए कितना है, 6 इंटू 10⁻18 1 कूलम चार्ज के लिए, राइट, 1 कूलम चार्ज के लिए इतने नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये बोलता है 1 कूलम, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻18, राइट। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा, इतने कूलम होगा, इतने कूलम, ठीक है ना। मैं अभी ये वैल्यू निकालने जा रहा हूं, अब आप बोलोगे यार ये आ जाएगी, यस आ जाएगी, यही आने वाले, लेट अस सी, देखो कैसे करते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय, चलो 1 से डिवाइड, एक काम करते हैं, 1/6 इंटू, अब ये 10⁻18 है, ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 10⁻−18। ये बात तो क्लियर है। तो चलो 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, नहीं जाता, डेसिमल लगाएंगे, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, 4 लाइक दिस, 1.6666 लाइक, ओके। तो क्या होगा, 0.1666 लाइक दिस 10⁻−18। तो कभी भी साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, अगर ध्यान से सुनना, अगर बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं, साइंटिफिक नोटेशन, तो कोई भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, एक नंबर यहां रखो पहले, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद सारे नंबर, और फिर 10 टू द पावर। मैं अभी चलो बताऊंगा, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं अभी। तो अभी मुझे कन्वर्ट करना है, अगर आप ऐसे लिख देते हो तो आंसर गलत नहीं है, लेकिन मैं अभी क्या करने चल रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिखूं तो 1.666, तो मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब मुझे 10 से डिवाइड भी करना है ना। तो जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 10 से डिवाइड भी करूंगा, चलो देखो मैं दिखा दूं, 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पोर्शन तो ये दोनों मिला के ही आ गया, राइट। अब इसका क्या करूं मैं, 10⁻−18 और ये 1/10, तो 1/10 इज नथिंग बट 10⁻−1, और 10⁻−18 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻−19, 10⁻−18 ऑलरेडी है, और ये किधर से आ जाएगा, इससे, तो क्या हो जाएगा 10⁻−18, सॉरी 19। सो दिस इज योर this much coulomb, getting or not, see, so 1.6 into 10⁻19 कूलम किसमें है, नेगेटिव चार्ज है, यस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोसेस ए नेगेटिव चार्ज, कितना 1.6 into 10⁻, मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा 1.6 into 10⁻−19 कूलम। सो इसका मतलब ये चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लिखता हूं तो वो किसका चार्ज है, प्रोटॉन का है, बिकॉज प्रोटॉन इज पॉजिटिव। 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप, गेटिंग, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ये देखो 2-3 लाइन मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि बच्चों को समझ में भी तो आना चाहिए। देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, छोड़ो सारी बातें, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां दिखाता हूं। Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb charge। 1 coulomb चार्ज के लिए
कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है फॉर 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के लिए आपने देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, तो क्या करना है 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही तो है भाई। अभी अभी तो आप पता करके आ गए ना इसको, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज है, तो एक कूलम के लिए कितना चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएगा। कैसे करोगे फिर आप इसको, 1/1.6 नहीं जाता ये, डेसिमल लगाओ। या एक काम करो, कभी भी ऐसा है 1/1.6 तो आप एक काम करो डेसिमल ऐसा लगा दो, ठीक है ना। तो 1/16 हो जाएगा, 1.0 डिवाइड बाई 1.6, तो ऊपर 10 नीचे 16, 0.96 40 कितना 0.6 आया ना। आप 0.6 लिखो, छोड़ो सब, 0.6 या 6 इंटू 10⁻, क्या आएगा ये 10⁻⁻19 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, है ना। और फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो एक काम करो, इसको 10 इसको दे दो और यहाँ 10⁻18 लिख दो, 10 इसको दोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 10⁻18, देखो आपका वही आंसर है। और 6 इंटू 10⁻18, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नियरली दीज मैनी इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, फॉर चार्ज, 1 चार्ज। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। मैंने इससे ये भी निकाल दिया और इन दोनों से अपोजिट चीजें। अगर अब भी आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखो कि समझ में नहीं आया। डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर, ऑलरेडी बता के आ गया हूं, एंड इट इज डिनोटेड बाय इन कैपिटल ए, named after the French scientist Andre Marie Ampere. Okay, 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge. तो ये क्या बता रहा है 1 एम्पियर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बता रहा है अगर 1 कूलम 1 सेकेंड में फ्लो करवाते हैं, 1 कूलम 1 सेकेंड में फ्लो कराएंगे तो क्या बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। यहां पढ़ के आए भाई, देखो ना ये 1 एम्पियर मतलब करंट, चार्ज कूलम 1 कूलम, टी टाइम 1 सेकेंड। क्लियर, क्लियर ना। ओके, सो दैट इज 1A इज इक्वल टू 1C/1S, ये क्लियर हो गया। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट इज एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर, मैंने ये भी बता दिया आपको। 1 मिली एम्पियर इज हाउ मच, बाई 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। और इन माइक्रो एम्पियर के लिए क्या बोलते हैं इसको 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। 10 तो माइक्रो के लिए क्या बोलते हैं, ये म्यू लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर, म्यू एम्पियर। आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, ठीक है, आपको नियर फ्यूचर में बाद में पढ़ोगे आप। चलो आगे देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अमीटर, मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको ये भी बता दिया, ये आपका एमीटर देखो ये, ठीक है। थ्रू विच, हाँ ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये बात भी मैंने आपको बता दिया। इट इज ऑलवेज, देखो इस सीरीज में है ना, यहाँ से कनेक्ट होके सीधा इसके बीच में से करंट ऐसे आ रहा है, तो सीरीज है। अब आप बोलोगे सीरीज के अलावा और भी कुछ होता है क्या, यस होता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। वो कौन लगता है, वो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहां लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, बी केयरफुल, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। वोल्ट मीटर कैसा लगता है, पैरेलल। और अमीटर कैसा लगता है, अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। बात समझ में आ गई ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, बार बार पढ़ो। आपको ये 2-3 पेज बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार, इफ यू वांट टू लर्न इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली। आपको पढ़ना है, ये नहीं पढ़ने वालों के साथ प्रॉब्लम यही आता है, वो पढ़ते ही नहीं है दोबारा, बार बार
आपको पढ़ना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड नाइसली। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन विच करंट ऑल्सो इन दिस फिगर 12.1, ये आपका सर्किट डायग्राम, या ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, शो द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, ध्यान से सुनना, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये रहा आपका बल्ब, ये रहा सेल, सेल क्या बैटरी है, दो है ना सेल, एक सेल नहीं है, दो सेल है, ये बी केयरफुल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एन मीटर, ये देखो ये रहा आपका मीटर, एन ए प्लग की, दिस इज योर की, केज की, है ना। नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से जा रहा है करंट, मैं इसे कलर बदल दूं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखो मैंने आपको बताया था, जिधर पॉजिटिव होगा उस डायरेक्शन से ही करंट फ्लो आगे होगा। देखो करंट आई इधर से जा रहा है ना, है ना, ये करंट आई किधर की तरफ से जा रहा है, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर से आएगा तो कहां आ रहा है, इधर से कहां पे आया, देखो नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल के पॉजिटिव से चलता है और पूरा घूम के नेगेटिव की तरफ आएगा। क्लियर, आप समझो इसको, बार बार समझो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और क्लियर नहीं है तो प्लीज आप मुझसे बात करो, फिर से बात करो, मुझे बताओ, व्हाट्सएप पे बताओ, और सबसे ज्यादा कमेंट, कमेंट तो आप लोग लिखते ही नहीं हो, यू आर नॉट लर्न एट ऑल, अरे कमेंट में लिखो, मेरी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी है, ठीक है। सो पॉजिटिव टर्मिनल से कहा जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड मीटर, तो बल्ब और मीटर के थ्रू की से होता हुआ नेगेटिव पोर्शन तक आएगा। क्लियर, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। बाकी व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस एंड डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या आता है, एम्पियर, तो इसको डिफाइन करना है, तो अब आपको यहाँ पे करंट की क्या बताना पड़ेगा आपको, कितना होता है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम, इन टाइम, सो दिस इज द डेफिनेशन, राइट। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम अभी मैं आपको बता रहा था, सर्किट डायग्राम में different symbols are there, so today I'll explain you what are those symbols and how you will learn it। तो इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहला एन इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल की बात करना है, तो मैंने बताया था आपको बड़ा वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा और उसके साथ में एक छोटा भी डाल दो तो वो नेगेटिव होगा, दैट्स ऑल, ये एक सेल है, वन सेल। क्लियर ना, क्लियर, इलेक्ट्रिक सेल क्लियर। अब बैटरी क्या है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इफ यू आर पुटिंग टू एंड मोर cells, two and more cells, it will become battery. See here, once again I'll tell you, this is your one cell, this is positive, this is negative, this is another cell, this is positive, this is negative, another cell, this is positive, this is negative, that's all. So once you are starting with positive, it should end with negative always. So how many cells are there, there are three cells, there are three cells। सो आगे बढ़ेंगे अब हम, अब ये हो गया बैटरी आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक सेल समझ में आ गया। अब आ जाओ प्लग की, प्लग की भी मैं आपको बता दिया, स्विच ओपन पोजीशन, ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब क्या है, अरे भाई स्विच ऑफ, जिसको हम स्विच ऑफ बोलते हैं, देखो यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, ये बीच में कुछ भी नहीं है तो स्विच ऑफ है, क्या बोलेंगे इसको, स्विच ऑफ। स्विच ऑन है, क्लोज, जब भी बोलेंगे क्लोज, तो क्लोज का मतलब है कि बीच में की लगा दिया है आपने, की लगाने का मतलब करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, मीन स्विच ऑन, क्या बोलेंगे, स्विच ऑन, रेडी। तो चलो अब आगे ये सीखना है आपको, वायर ज्वाइंट और वायर क्रॉसिंग, ये मुझे आपको सिखाना है अच्छे से। तो चलो और अच्छे और क्लियर बताता हूं आपको मैं, वायर ज्वाइन एंड वायर क्रॉसिंग।
ध्यान देना, सपोज आपका एक वायर इधर से फ्लो, इधर से चलता हुआ जा रहा है, कहीं भी जा रहा है आगे, एंड यू वांट वन प्लग कनेक्शन फ्रॉम इट, यहां से लेके कनेक्शन जोड़ दिया, यहां पे आपने एक बल्ब लगा दिया सपोज, या ट्यूबलाइट कुछ भी लगा दिया यहाँ पे आपने, ठीक है ना, एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपने क्या किया, इस वायर से इस वायर को ज्वाइन किया, है ना, मतलब अगर करंट इधर की तरफ आ रहा है, ध्यान देना, करंट अगर इधर की तरफ आ रहा है तो अब ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, बंट जाएगा, है ना, दोनों डायरेक्शन में करंट जाएगा, बट गया। ये तो क्लियर हो गया। तो आपने ज्वाइन किया है, क्या किया है, ज्वाइन कर दिया। अब होता है वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग का मतलब है सपोज कोई वायर इधर से पास होके जा रहा है। अच्छा सुनना ध्यान से, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है, रीजन बिहाइंड, कभी भी आप कोई गजेट बनाए, सपोज यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गजेट बनाया और आपने एक बुक में आप इसको मेंशन करोगे कि सर्किट आपने कैसे बनाया है, इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग एंड व्हाट आर द वायर्स क्रॉसिंग ईच अदर और ज्वाइनिंग ईच अदर, राइट। सो ज्वाइनिंग पोर्शन आई टॉट यू, व्हाट इज क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मीन्स सपोज वन वायर इज गोइंग लाइक दिस, करंट भी ऐसा फ्लो कर रहा है, सपोज एक और वायर इधर से आ रहा है लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, आप उसको ज्वाइन नहीं कर रहे, सिर्फ वायर क्रॉस कर रहा है, तो आप इसको ऐसा कर दो। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो ड्रॉ करेगा ऐसा, उसका मतलब है व्हाट डज इट मीन, इट मींस दिस वायर इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद दिस वायर, दिस इज जस्ट पासिंग थ्रू ओवर इट, उधर से जा रहा है बस, लेकिन आपस में जुड़ता नहीं है, इट इज नॉट गेटिंग ज्वाइंट। नहीं तो क्या होगा, एक इंजीनियर ने ऐसा बना दिया, गलती से उसने ऐसा कर दिया, तो दूसरा इंजीनियर क्या करेगा, इस वायर को इससे ज्वाइन कर देगा और ज्वाइन करते धूम धड़ाका हो जाएगा, है ना। तो ज्वाइन नहीं करना है तो क्या करेगा, ऐसा बनाएगा। तो अगर ऐसा ऐसा आप डायग्राम में देखते हो तो इसका मतलब क्या, इट सिंबलाइज दैट दिस वायर इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद दिस, इट इज जस्ट क्रॉसिंग, ऊपर से नीचे से क्रॉस होके चला जाएगा बस, इंसुलेटर दोनों में लगा हुआ है, एक दूसरे से करंट पास नहीं होगा, ओके, नो करंट विल पास ईच अदर, ओके। तो ज्वाइन नहीं हो रहा है, राइट। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस सिंबलाइज बल्ब, ये तो आपने खूब अच्छे से देख लिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, बल्ब का सिंबल है ये। अभी बल्ब ऐसे नहीं होते, आजकल एलईडी वगैरह आप यूज करते हो तो इसमें ऐसे सिंबल नहीं है, अदरवाइज जिसके फिलामेंट वाले बल्ब हैं अभी भी आप देखोगे ऐसा फिलामेंट जैसा बना होता है, दैट्स व्हाई इट इज सिंबलाइज लाइक दिस, ओके। चलो नेक्स्ट, रेसिस्टर। अब हम लोग आ रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, रेसिस्टर। तो रेसिस्टर को शो करने का ये तरीका है, ऐसा 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 आप रेसिस्टर शो करेंगे। सपोज कोई गैजेट है, कुछ भी है, रेसिस्टेंस के लिए करंट को ये रोकेगा, फ्लो को रोकेगा और वहां पे हीट जनरेट करेगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा जब आपको टाइम आएगा, अभी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा वो कैसे करता है। ये थोड़ी देर रुको, पहले इन दोनों को बता दूं, फिर मैं ये अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये रियोस्टेट समझाना आसान काम नहीं है। वेरिएबल रेसिस्टेंस बच्चों को समझा ही नहीं पाते टीचर बहुत से, तो मैं आपको समझाऊंगा, रुक जाओ। पहले मैं अमीटर बता दूं, तो अमीटर को अमीटर आपने देखा, इधर सपोज पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है और ये ऐसे फ्लो होगा। सेम वे वोल्ट मीटर को भी ऐसे ही शो करेंगे हम लोग, बट याद रहे इसको हमेशा कहाँ लगाते हैं, पैरेलल, और ये सॉरी पैरेलल, और ये कैसा लगता है, सीरीज में लगता है। ये दोनों अभी अभी आपने ये देख लिया है, लेकिन ये नहीं देखा है कैसे लगाते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको। चलो अब आ जाओ वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलो या रियोस्टेट बोलो, एक ही बात है। तो ये क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट। चलो इसको सिंबलाइज कैसे किया देख लो, इसका सिंबल देख लो यहाँ पे, ऐसे भी करते हैं ऐसे भी करते हैं। तो चलो मैं आपको अच्छे से सिखाने के लिए तैयार हूं। वेरिएबल रेसिस्टेंस,
वेरिएबल रेसिस्टेंस इज नथिंग बट, एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपका। सपोज आपके घर में फैन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन में रेगुलेटर है, रेगुलेटर लगा है ना। अब ये रेगुलेटर, ध्यान देना प्लीज, अभी ध्यान देने वाली बात है। रेगुलेटर में ये रेसिस्टेंस ऐसे बना हुआ है, ध्यान देना। ये बाकी सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम के लिए ऐसे एक आ रहा है, ऐसे इस तरीके से, और वो मान लो ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाता है। आपने जैसे ये सपोज 1 है, आपने स्विच ऑन किया फैन, आपको यू वांट वेरी वेरी लेस फ्लो ऑफ फैन, आपको ठंडा लग रहा है, आपको स्लो चाहिए फैन, बिल्कुल स्लो, कंप्लीट स्लो। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है? इतना रेसिस्टेंस मींस आपका करंट को रेसिस्ट करने के लिए दिस मच रेसिस्टेंस इज देयर। रेसिस्टेंस तो ये रेसिस्ट कर रहा है, ये पोर्शन कितना है, ये करंट को क्या कर रहा है? करंट के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, कम कर रहा है, उसको ज्यादा नहीं जाने दे रहा, ज्यादा फ्लो नहीं होने दे रहा है। फिर आप बोलते हो नहीं यार मुझे तो 2 पे चाहिए, मुझे थोड़ा और चाहिए तेज। तो अब आप जब जैसे ही प्लग को उसको ऑन करते हो, 2 नंबर पे लाते हो, तो ये आपका 2 नंबर यहाँ आके सेट हो जाता है यहाँ पे। तो अभी आप ध्यान देना, थोड़ा मैं कलर बदल के दिखाऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है ये इनइफेक्टिव हो गया। देखो अब ये कनेक्ट कहाँ हुआ? यहाँ हुआ ना कनेक्ट। तो अब इधर वाला जो पोर्शन है ये इफेक्टिव है भाई, सर्किट में तो यही आ रहा है। और ये वाला ये पोर्शन कैसा है? नॉन इफेक्टिव। तो हमें तो किससे मतलब है? इफेक्टिव से। तो इफेक्टिव पोर्शन छोटा हो गया, रेसिस्टेंस जो रेसिस्ट कर रहा था पहले ज्यादा रेसिस्ट कर रहा था, अब कम कर रहा है रेसिस्ट, इतना पोर्शन और कम हो गया। तो आपका फैन तेज चलेगा क्योंकि रेसिस्ट करना बंद कम हो गया। जितना पहले रेसिस्ट कर रहा था 1 पे, उससे और कम रेसिस्ट करेगा, तो फैन तो तेज चलेगा ना। क्लियर? क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलते हो नहीं भाई मुझे तो और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा फ्लो होना मेरे को, मुझे ज्यादा तेज चाहिए फैन। तो चलो 3 नंबर पे लगा दिया। तो अभी इफेक्टिव कितना? ये है इफेक्टिव। इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है? इतना है। ये नॉन इफेक्टिव हो गया, देख लो ये अभी कट गया, इधर से निकल गया, आपको यहां से करंट इसके बीच में चल रहा है। तो नाउ व्हाट विल हैपन? less amount of current will restrict or resist, more flow will be there. So more flow means your fan will also move faster. क्लियर है? अब आप बोलते हो नहीं यार थोड़ा 4 पे लगा के देखता हूं क्या होता है। ये रहा आपका 4, और इसको यहां से हटा के 4 पे लगा दो। अब आपका फैन बहुत तेज जा रहा है क्योंकि जो रेसिस्ट करने वाला है वो बहुत थोड़ा सा बचा है, बहुत थोड़ा, वेरी वेरी स्मॉल। जो फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप कर रहा था, फ्लो ऑफ करंट को रोक रहा था, वो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर आप बोलते हो नहीं भाई नहीं मुझे तो फुल चाहिए। फुल, फुल मीन्स नो रेसिस्टेंस। फुल मीन्स नो रेसिस्टेंस, पूरा रेसिस्टेंस इनइफेक्टिव कर दो, डायरेक्ट फैन चल रहा है, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो अभी क्या देखा आपने? ये पूरा का पूरा क्या कर रहा था? वेरिएबल रेसिस्टेंस था, वेरी कर रहा था। रेसिस्टेंस के जितना रेसिस्टेंस था, अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस वाज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी करना, मतलब कम ज्यादा कर सकते थे। तो रेगुलेटर हमारा एक तरीके से कैसा है? वेरिएबल रेसिस्टेंस का काम करता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर नहीं समझ में आया है, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क मी लेटर। तो आज आपका काम है ये पोर्शन पूरा पढ़ना है अच्छे से। सिंबल को बना बना के देखो, सर्किट डायग्राम पूरा मैंने बता दिया। ये मैं आपको कल बताऊंगा, राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, नहीं तो क्लियर नहीं होता है, राइट? और ये यहां से ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक फंडामेंटल्स।
तो बेसिक फंडामेंटल के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपसे बहुत बहुत उम्मीद करूँगा। और अच्छा पढ़ के मुझे बताओ यस आई अंडरस्टूड वेल। और उसमें आप लिखते ही नहीं हो कमेंट में बताओ भाई, थोड़ा बताओ, कम समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, वो टॉपिक समझ में नहीं आया, जैसा भी है मुझे बताओ, राइट। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा बताएंगे तो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट। तो चलो अभी अभी हम लोग वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाएंगे, लेट अस स्टॉप इट एंड स्टार्ट योर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।